Hello everyone. Yes, beta, today we are going to complete our exercise 7.1 from question number 4. Okay. So first question. L and M are two parallel lines. According to given information, we draw a figure of this question. L and M are two parallel lines. L, M. Okay. Intersected by another pair of parallel lines P and Q. P and Q बच्चे, okay? At A, B, C and D, okay? A, B, C, D. हमने ये लेट कर लिए पॉइंट A, B, C, D and join A to C. Okay. अब according question number 4, according to given information, L and M are two parallel lines and intersected by another pair of parallel lines P and Q, and this form parallelogram ABCD, in which AB is equals to CD and second condition AD is equals to PC. L and M are two parallel lines and intersected by another pair of parallel lines, that is P and Q here. P and Q, and this form parallelogram in which AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, so that ABCD is a parallelogram in which opposite side of parallelogram are equal. This implies AB is equals to CD and AD is equals to BC. क्या प्रूव करना है हमें ये प्रूव करना है triangle ABC is congruent to triangle CDA. Okay बच्चे? So in triangles ABC and CDA, AB is equals to CD, AC is equals AC and AD is equals to BC. Side rule, triangle ABC is congruent to triangle CDA by triple S rule. AC क्या है? Common in both the triangle. और from 1, ये दोनों कहाँ से आए? From 1. Triangle ABC is congruent to triangle CDA by triple S rule. Very 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 important question. अब क्या गिवन है बच्चे? दो पैरेलल लाइन का पेयर दिया है, ठीक है? एक है L M और दूसरी है P Q. L is parallel to M. This implies AD is parallel to BC. Similarly, P is parallel to Q. In this, AB is parallel to BC. So ABCD is form a parallelogram. In parallelogram, opposite side of parallelograms are equal. So AB is equals to DC, BC is equals to AD, and AC is common in both the triangles. Okay, so triangle ABC is congruent to triangle CDA by triple S rule. Okay बच्चे, next question. Question number 5.
हाँ जी बेटा, लाइन L is the bisector of angle A. Line L is the bisector of angle A. Line L is bisector of angle A. This implies angle QAB is equals to angle PAB. क्योंकि ये जो L लाइन है वो क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। ये तो अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। और एक एंगल P और एंगल Q क्या है, 90 डिग्री ईच है क्योंकि परपेंडिकुलर है। और AB दोनों में क्या है बच्चे, कॉमन। कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं आपको बता दूं, इन ट्रायंगल्स APB एंड AQB, in triangles APB and AQB. Okay, angle QAB is equals to angle PAB from 1, इसको कॉल कर लो PAB बचे, from 1. Okay, angle P is equals to angle Q, 90 degree each. Okay बेटा, 90 degree each. And next one, AB is equals to AB, common in both the triangles. Common, तो कौन सा रूल लगा, एंगल साइड. So triangle APB is congruent to triangle AQB by AAS rule, एंगल साइड क्राइटेरिया. ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है. सेकंड पार्ट प्रूव करना था कि जो BP है वो QP के बराबर है. QB के एक BP is equals to BQ by CPCT. रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं. बस ये लाइन ध्यान रखनी है आपको. फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल. ये क्वेश्चन में दिया है उसको ही आपने यूज करना है. सो एंगल QAB ऊपर वाला पार्ट ये वाला इज इक्वल्स टू PAB, नीचे वाले के इक्वल है. और ये 90 के एंगल है और ये भी दोनों ट्रायंगल में क्या है बच्चे, कॉमन है. सो ट्रायंगल APB इज congruent to triangle AQB. Okay, by CPCT BP is equals to BQ. Okay, next question बच्चे. हाँ जी बेटा, इन दिस फिगर AB is equals to AD and AC is equals to AE. ये कंडीशन गिवन है, मींस ये दो साइड इक्वल हैं. बात करते हैं ट्रायंगल कौन सी है. एंड एंगल BAD ये वाला is equals to एंगल EAC Okay, show that BC is equals to BE. BC is equals to wait for a while बच्चे. BC is equals to DE. Okay, yes, BC is equals to DE. BC is equals to DE. BC is equals to DE. Okay,
ये प्रूव करना है आपने। ओके, तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC and in triangles ABC and ADC in which AB is equals to AB common AB is equals to AD given and AC is equals to AE, ये भी given है। अब बात करते हैं हम एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAE, ये तो गिवन है, बट दोनों में कॉमन ये वाला पोर्शन भी है, प्लस बोथ साइड क्या एंगल ऐड कर दिया हमने DAC ऐड कर दिया। ये दोनों क्या हो गए बच्चे? इक्वल एंगल हो गए। क्या हो गए? इक्वल। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, सो triangle ABC is congruent to triangle ADC by SAS rule। क्या हो गया बेटा? दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। कौन कौन सी ट्रायंगल ली है मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं ताकि आपको याद रहे एक्चुअल में क्या है। ये एक ट्रायंगल लिया है हमने ABC और दूसरी ट्रायंगल लिया हमने, वेट फॉर ए व्हाइल बेटा, वो ट्रायंगल लिए हैं जिनमें साइड इक्वल है और हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकता है। BC इक्वल आ गया, अब हम बोल देंगे BC इज इक्वल्स टू DE बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एंगल कौन सा बच्चे? ये वाला एंगल और ये इक्वल दिए हैं, तो हमने जो कॉमन एंगल है DAC वो दोनों में ऐड कर दिया, तो उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला और वो क्या हो जाएंगे बच्चे? इक्वल हो जाएंगे और अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ये फिगर अच्छे से देख लेना, जो एंगल मैंने ट्रायंगल मार्क किए हैं उन ट्रायंगल का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को क्या किया बच्चे? सॉल्व किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बेटा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 करना है, उसी मेथड से करना है हमें क्वेश्चन को। ओके, हाँ जी बेटा, ये गिवन कंडीशन है, ये एंगल बी के इक्वल है और ये वाला पोर्शन है वो इसके इक्वल है। ओके, हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। इसके कॉन्ग्रुएंट है बेटा EBP के। अब देखो DAP कौन सी ट्रायंगल है? DAP ये कंप्लीट ट्रायंगल है। क्या है बेटा? कंप्लीट। DAP ये कंप्लीट ट्रायंगल है। किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है? EBP, B और P के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, ये हमें प्रूव करना है। शो दैट ट्रायंगल DAP दिस वन DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। ओके, किसके कॉन्ग्रुएंट है बेटा? EBP के। एक मिनट रुको, कुछ इसमें मिस है बेटा। यस, एग्जैक्टली, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, P इज द midpoint of side AB, P is the midpoint, this implies, लिख लेते हैं हम,
P is the midpoint of AP. This implies AP is equals to BP. ओके, अब ध्यान से देखिए मैं क्या करने चाह रहा हूं. In triangles DAP and EBP क्या है? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B गिवन है, AP इज इक्वल्स टू BP फ्रॉम 1, ये गिवन है बच्चे, एंड एंगल EPA is equals to angle DPB. ये इक्वल है, गिवन है. अब हमने कॉमन पोर्शन है ना जो दोनों में बेटा, कॉमन पोर्शन कौन सा है मैं आपको बताने जा रहा हूं. ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कॉमन है दोनों में. क्या है बच्चे? कॉमन. कौन सा एंगल है ये? DPE. दोनों में ऐड कर दिया. एंगल EPA प्लस DPE दोनों में ऐड कर दिया बच्चे. DPB प्लस DPE. तो इससे क्या हुआ? ये एंगल कौन सा बन गया? DPA एंगल बन गया. कौन सा एंगल बन गया? DPA. कौन सा एंगल बन गया बेटा? कंप्लीट एंगल. DPA इज इक्वल्स टू एंगल EPB इज इक्वल्स टू एंगल EPB. ये क्या है बच्चे? साइड. ये क्या है? एंगल. और ये क्या है बेटा? सॉरी, ये क्या है? एंगल. ये क्या है? साइड. और ये क्या है? एंगल. सो बोथ द triangle DAP is congruent to triangle second one that is EBP. दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है बाय ASA रूल. बस कुछ भी नहीं है, कॉमन पोर्शन दोनों में ऐड कर दिया, दैट इज DPE. और उससे क्या हुआ? कंप्लीट एंगल बन गया. कौन सी ट्रायंगल के लिए? DAP के लिए. और किसके? EBP के लिए. और हमारी ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट हो गई. कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सो बाय CPCT AD इज इक्वल्स टू BE. AD इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे? BE हो गया. ये अपना आंसर है बाय CPCT. ओके, ये कंप्लीट हो गया आपकी एक्सरसाइज 7.1. इसमें एक क्वेश्चन पेंडिंग है, वो आपने खुद ट्राई करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है. ओके, कंप्लीट एक्सरसाइज 7.1. ओके.